Good morning students. Welcome to your EVS class. How are you students? I hope you are fine and doing very well. Students, first of all we will discuss our password that we usually do. Our password is internal organs. Students, you already know about internal organs. Internal organs are those organs that are inside our body. We can't see them, but they play an important role. So we have discussed some important internal organs. We have discussed about brain, heart, lungs, stomach, bones and muscles. So we came to know that internal organs and external organs work together. Now what we are going to do in our EVS class? Students, first of all we will have a quick recap of our chapter number 5, how our body works. Then we will do bookwork exercise of chapter number 5. One more important thing I want to tell you, that today I am not giving you EVS homework. Instead I am giving you English homework. That will be a learning homework. I will take test of this learning homework on Monday. So first of all we will have a quick recap of our chapter number 5. Yes students, before we start our new work, we will have a quick revision of our chapter number 5, that is how our body works. So students, we have already read this lesson or discussed it also. We came to know that our body is a living machine. हमें पता चला कि हमारी body एक living machine है. It has two types of organs. Body में दो तरह के organs हैं, external organs and internal organs. Organs हमारी body के ही part हैं. What are external organs? External organs are those that can be seen. External organs वो होते हैं जो हम देख सकते हैं. So we already know about external organs. हम external organ के बारे में पहले से जानते हैं. यहाँ एक पिक्चर दी गई है और हमें इसमें जो लेबल करने थे organs वो सारे external organs हैं. हमने ये already किया है, but we will have a quick revision of this also. This is head, this is eye, mouth, finger, elbow, stomach, knee, toes, hair, ear, nose, shoulder, chest, arm, hand, leg and foot. So these are all external organs. Now what are internal organs? Internal organs वो organs होते हैं that are inside our body. So yesterday I sent a video regarding internal organs. I am sure that you watched it very carefully. आपने ध्यान से उसको देखा होगा. Now we will move to our next page for revision of internal organs. Here you can see these are all internal organs. The heart, the brain and the stomach and the lungs ये important internal organs हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण internal organs है. Internal means आंतरिक organs जो हम देख नहीं सकते but उनका काम बहुत ज़्यादा important है. वो क्या काम करते हैं? Let us start with the brain. Brain क्या है? Brain is inside our head. Brain हमारे head के अंदर है. यही हमें सोचने, सीखने और याद करने में help करता है. It controls all the organs of our body. ये हमारे सभी body organs को control करता है. Students, I want to tell you at this time you are watching this video. इस समय आप वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं. मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है. So इसमें आपके कौन से organs काम कर रहे हैं? एक तो आपकी eyes और आपके ears, कान से आप सुन रहे हैं और eyes से आप वीडियो देख रहे हैं. बट ये तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, बट ब्रेन इसमें सबसे ज़्यादा काम कर रहा है. बिकॉज आप जो देख रहे हैं आपकी आइज सिग्नल भेज रही हैं ब्रेन को कि आप क्या देख रहे हैं, और जब आप सुन रहे हैं तो आपके ईयर्स सिग्नल भेज रहे हैं ब्रेन को कि आप क्या सुन रहे हैं. सो ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. यही सब कुछ है. दिस इज़ द मास्टर माइंड और इट इज़ द बॉस यू कैन से. नेक्स्ट इज हार्ट. हार्ट क्या है? हिंदी में इसको हृदय बोलते हैं, दिल बोलते हैं. हार्ट क्या करता है? अवर हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. हमारा जो हार्ट है हमारे सब बॉडी पार्ट्स पे को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है. सारे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है. कौन भेजता है? हार्ट.
नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स है, लंग्स का क्या काम है? देयर आर 2 लंग्स। हमारे शरीर में 2 लंग्स हैं, वो इस चेस्ट के अंदर हैं। ये लंग्स हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, सांस लेने में। नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक क्या है? हमारा हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक में जाता है जब हमारा खाना, तब स्टमक का काम शुरू होता है डाइजेस्ट करने का, उसको पचाने का। नेक्स्ट बोन्स एंड मसल्स। अगला है बोन्स एंड मसल्स। बोन्स मतलब हड्डियाँ, मसल्स मतलब मांसपेशियाँ। हमारा जो शरीर है वो बोन्स एंड मसल से बना है, और ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उस फ्रेमवर्क में प्रोटेक्टेड हैं। बोन्स नहीं होती तो एकदम से चोट लग जाती है आपको। बोन्स हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव, रन एंड प्ले। बोन्स और मसल्स मिलजुल कर काम करते हैं ताकि हम हिल सकें, भाग सकें और खेल सकें। सो दे आर एज इम्पॉर्टेंट। सो ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क वेल व्हेन वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। ये तो अपना काम कर रहे हैं, बट हमारा काम क्या है? हमारे बॉडी पार्ट्स तभी अच्छे से काम करेंगे अगर हम उनकी देखभाल करेंगे। सो दिस वाज अवर चैप्टर नंबर 5। ये तो रीडिंग था। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज देयर फॉर आवर वर्क टुडे? लेट अस सी। Yes students, what we have learned? We have learned that internal organs and external organs work together. वो मिलजुल कर काम करते हैं। We also came to know that bones and muscles also work together to make our body move, run and play. हमें ये भी पता चला कि bones और muscles हैं वो भी मिलजुल कर काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी मूव हो, हम रन कर सकें और खेल सकें। We also came to know that brain is the most important part of our body. Brain हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन क्या काम करता है? हमें सोचने में, लर्न करने में और रिमेंबर करने में, याद रखने में मदद करता है। It helps us to think, learn and remember. So brain is the boss. Brain boss है। Now here are some important facts. We will discuss it. Do you know? क्या आप जानते हैं? Some parts of our body do not have any bones. हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें बोन्स नहीं है, हड्डी नहीं है। They are, वो कौन से हैं? टंग, eyelids and lower part of the ear. टंग क्या होती है? जीभ, जिससे आप टेस्ट करते हैं। eyelids क्या है? पलक। और लोअर पार्ट ऑफ द ईयर, कान का नीचे का हिस्सा, जहाँ हम लोग ईयरिंग्स पहनते हैं, वो लोअर पार्ट है, वहाँ बोन्स नहीं होती। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज एन एलिफेंट्स ट्रंक हैज़ नो बोन्स। जो एलिफेंट की जो सूंड होती है उसमें बोन्स नहीं होती। तभी आप देखते हैं वो अपनी सूंड को रोल करता है, ट्रंक को, और उसमें वाटर फिल करता है, देन स्प्रिंकल करता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। वो भी किसके बारे में है? बॉडी पार्ट्स के बारे में। नाउ अवर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज विद मी। आप मेरे साथ ये करेंगे। यू विल राइट क्लास वर्क हेयर एंड टुडेज डेट हेयर। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट आंसर्स। सही आंसर्स को टिक करना है। MCQs हैं ये। फर्स्ट इज लंग्स हेल्प अस टू। लंग्स, फेफड़े हमारी मदद करते हैं। ऑप्शंस आर टॉक, बात करने में, ईट मतलब खाने में, और सी है सांस लेने में, ब्रीथ करने में। सो लंग्स क्या करने में मदद करते हैं? बोलने में, बातें करने में, खाने में या सांस लेने में। तो द राइट आंसर इज ब्रीथ, सांस लेने में मदद करते हैं। सो वी हैव 2 लंग्स, डू यू नो? नेक्स्ट इज विच इज नॉट एन इंटरनल ऑर्गन। इनमें से कौन सा ऑर्गन इंटरनल नहीं है? ऑप्शंस आर नोज, ब्रेन एंड किडनी। सो ब्रेन क्या है? हमारे हेड के अंदर प्रोटेक्टेड है। किडनी भी हमारे स्टमक और चेस्ट के बीच में है। किडनी क्या है? यकृत बोलते हैं इसको। ये हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है। सो नोज क्या है? आप देख सकते हैं, दिस इज एक्सटर्नल ऑर्गन।
तो जो इंटरनल नहीं है वो एक्सटर्नल है। ब्रेन एंड किडनी आर इंटरनल ऑर्गन्स, और वो पूछ रहे हैं आवर क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन इंटरनल ऑर्गन, सो आवर आंसर इज नोज। वी विल टेक दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट। हमें सोचना है एंड देन हमें लिखना है। विच ऑर्गन इज यूज टू, इसमें से कौन सा ऑर्गन मदद करता है या यूज होता है। आई वॉन्ट टू टेल यू इन एडवांस कि ये सारे इंटरनल ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। ब्रीथ, सांस लेने में, सो सांस लेने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है। व्हाट वी हैव लर्न, लंग्स। हमने क्या सीखा है कि लंग्स हमें सांस लेने में मदद करते हैं, सो आवर आंसर इज लंग्स, LUNGS, लंग्स। नेक्स्ट इज पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के सब पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है। व्हाट विल बी द आंसर्स, हार्ट, HEART, हार्ट। हार्ट क्या होता है, हिंदी में इसको हृदय या दिल बोलते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेस्ट फूड, फूड को पचाता है, खाने को पचाता है। द आंसर इज स्टमक, STOMACH, स्टमक। नेक्स्ट इज थिंक, सोचने में, तो आपको पता है सोचने में क्या कौन सा ऑर्गन मदद करता है, वो इंटरनल ऑर्गन है। कौन सा है, ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। सो ब्रीथ करने में लंग्स, पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आंसर इज हार्ट, डाइजेस्ट फूड स्टमक, एंड थिंक ब्रेन। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। इस ग्रुप में एक जो ऑड है, जो गलत है चीज़, जो दूसरों से मैच नहीं कर रही है, उसको हमें सर्कल करना है। ऑड वन एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। सो ये फर्स्ट ग्रुप है। हमें वी आर गिवन 4 वर्ड्स। देखते हैं, टाइगर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स। व्हाट इज द ऑड वन। टाइगर आपको पता है एनिमल है, हार्ट है इंटरनल ऑर्गन, ब्रेन इज ऑल्सो एन इंटरनल ऑर्गन, एंड लंग्स इज ऑल्सो इंटरनल ऑर्गन। सो व्हाट इज रॉन्ग और ऑड, टाइगर, बिकॉज ये क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं, और टाइगर क्या है, इज द नेम ऑफ द एनिमल। सो वी विल सर्कल द वर्ड टाइगर बिकॉज दिस इज द ऑड वन। नेक्स्ट इज टंग, आइज, ट्री, ईयर्स। टंग जीभ, आइज आँखें, ट्री पेड़, और ईयर्स कान। तो स्टूडेंट्स विच इज़ द ऑड वन, इसमें से कौन सा ऑड है। सो यू नो ट्री, बिकॉज टंग ऑर्गन है, आइज भी ऑर्गन है, ईयर्स भी ऑर्गन है, बट ट्री क्या है, प्लांट। प्लांट का ही जो है ह्यूज प्लांट है जिसको हम ट्री बोलते हैं। सो दिस इज द ऑड वन। Yes students, we will do these exercises up to here only in our today's class. What we have learned, we have discussed internal and external organs. We came to know about some important facts that are related to organs, and then we did practice exercise section A, in which we did 3 parts ABC. First was about tick the correct answer, second one was think and write, and this one was circle the odd one in each group. Now that's all for our EVS class today students. As you know that today is the homework giving day for EVS subject, but I am not giving you any homework of EVS today. Instead I am going to give you English homework so that I can take test of that work. मैं आपको इंग्लिश होमवर्क दे रही हूँ EVS की बजाय, ताकि हम उसका टेस्ट कर सकें। माई होमवर्क विल बी मेक सेंटेंसेस ऑफ आवर पोएम that is a house. So that's all for our EVS class today students. We will meet in our next EVS class. Till then students, bye bye.